अगर हम झुकना जानते हैं तो झुकाना भी जानते हैं। जो हल चलाता है उसने कभी बंदूक उठा के देखी नहीं। हमको बंदूक की जरूरत नहीं, हम हल चलाते हैं। बिल्कुल ये गुलाम बनाने की कोशिश है, और अंग्रेजों से भी ज़्यादा गुलाम, जिंदा लाश की तरह बोलते हैं ना, वो जिंदा लाश बना के छोड़ देंगे। बेटी नहीं बचाओगे तो घरवाली कहाँ से लाओगे, अगर खेती नहीं बचाओगे तो अन्न कहाँ से खाओगे। We want to, as our agricultural minister, Mr. Narendra Tomar, that we are not illiterate. We can understand your bill, which you have sent to us, the language very well. So we must request to our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi also, Narendra Modi also, that he must resolve these problems as soon as possible on the fast track courts. Please, we are urging our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, that BJP government must take these steps on this, on the fast issue. Why this is telling? Because in the severe cold, our old people they are shivering in the severe cold, and our kids also, 1.5 years also, they are sleeping in the open air, and you are sleeping in the AC room. So he must feel shame on his part, being the king of this India. So another one thing I will tell you, is telling himself the Chowkidar, but he is the Chowkidar of the only Adani's bureaucrats. He is not for India. So one more thing I will tell you, he has taken panga with, he is telling himself chai wala. Now he has taken panga with दूध वाला. तो दूध वाला हमेशा भारी होता है चाय वाले पे. One more thing I will give you, through your channel I want to achieve one more thing. Thus they have sent us these death warrants, और हमारे बर्बादी के वारंट हैं. We got documentary here. One fraud has been done in the Punjab, 70 lakhs. When that our father, he has got the documentary proof. By that was the agent of this Ambani Chinese corporation. So we must not believe in that. In which sense he is telling that he is not knowing, they are illiterate farmers, they cannot understand the language of this bill. We can understand well, we can make him understand that what is what. One more thing, ये मुँह में राम राम हैं और हरे हरे अरंडे खाए खड़े खड़े, तो ये बात ही बहुत द प्रूडेंट पीएम इज आई फील सेम. आपने नरेंद्र तोमर जी की बात करी, वो ये बोलते हैं कि आज 3 लाख से ज़्यादा किसान हमारे समर्थन में, तो वो कौन से किसान हैं जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और कौन से किसान हैं जो वो आज उनके बीजेपी के साथ हैं, और यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं उनको तो बताया ही नहीं जा रहा है कि वो किसान नहीं है, वो प्रायोजित कार्यक्रम की तरह लाए हुए लोग बताए जा रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे ऑन अपार्ट दिस? देखो तार पीड़ो करने के लिए ऐसे प्रोटेस्ट को, because it's the last protest you can say in this India. I have seen in my 65 years old age, I have never seen before such a protest. Why? Because they want to, इसको यानी चित्र वित्र करना चाहते हैं कि जनता आंदोलन. But now the Punjab हमारा बड़ा भाई है, and I am from Haryana, we are Lakshmana. So now jointly we have came both on this the platform, and we will fight like anything. We will not go back to our homes until unless they will not take these bills back. Otherwise, our dead bodies will go to our home. Let us tell one more thing, that he must understand that once we don't want you, sir, why is adopting? Why is giving to us? हम बच्चे को किसी को खिलौना देते हैं, वो खुश हो जाता है उससे अच्छा. Now he's handing over us to this रावण का मूर्ति दिखा रहे हैं. वैसे ये बोलते हैं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए तमाम बीजेपी के नेता समझाने के लिए निकले हुए किसानों को. क्या कहना चाहिए? That's why I give a message through your channel, my dear, in English, so that they can know that we are educated also, educated farmers. नहीं, how he has become the PM of, once he is chai wala, how he is this much education from where he has got? His speech is brought in, he is telling lie. इतना पढ़ा लिखा आदमी राजा कैसे बन सकता है देश का? चबेंगे चाय वाला. हाँ, तो इस टोटली रॉन्ग थिंग. They want to misguide the public. नहीं, they want to misguide these peoples which are taking part in this protest. So they are the fraud farmers. They are telling that 2.5 lakh people, and the farmers are standing there in the fear of this BJP government. No, a single cannot be. Here 42 sons are there. Everybody is present with us. You can ask to anyone. 42, they will come and they will call them back here, and we will get a meeting with them. 42 here. Then who has gone that side? Nobody. We can't believe it. We can do and die. We can do any damn thing. But we will not believe this. It's fraudulent. क्या कहना चाहते हैं?
मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जो कह रहे थे किसान वहाँ गए हैं तोमर जी के पास, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लीडर हैं, जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, वही फैसला करेंगे, वही मीटिंग करेंगे। और ऐसा कोई किसान नहीं है किसी को पैसे दे के, किसी को बोल के। आपने अभी देखा ये पीछे जो नारनौल में उसके बाद रैली करी थी। एक बात हम मानते हैं, अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती, इनल होती, तब तो ये धरना करते कि हाँ विरोध में कर रहे हैं। अपनी सरकार के खिलाफ ये कैसा है, ये झूठ फैला रहे हैं जो शुरू से। और आपने देखा 26 तारीख से पहले रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे हमारे घरों पे रेड मारी, झूठे 307 के मुकदमे दर्ज करे। आंदोलन को दबाने की इतनी ज्यादा साजिश कर रखी है। इतने इस तरीके की साजिश की बात कर रहे हैं। साजिश अभी हमने थोड़े दिन पहले यहाँ 2 लड़कियाँ, 15 लड़के पकड़े थे। उन लड़कियों ने क्या बोला, उन्होंने खुद माना यहाँ पे कि हमको यहाँ कुंडली थाने के जो मुंशी हैं, जो यहाँ SHO है और जो DC है, उन्होंने हमको 500-500 रुपये दिहाड़ी में बोला है कि आप जाओ वहाँ से गलत कवरिंग लेके आओ और इस आंदोलन को बदनाम करो। और आपने जो देखा यूपी बॉर्डर पे उमेश सिंह नेता, BJP के नेता हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए बदनाम करने के लिए। वो तो कोई कांग्रेस वाला नहीं था, विपक्ष नहीं था उसमें, वो तो एक BJP वाले थे। तो ये बदनामी करने की साजिश है। कितना दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, हर तरह के। लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी बोलती है कि हम आपके किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं खड़े भाई साहब, कहाँ से खड़े हैं हमारे साथ? अगर साथ खड़े होते वो कह रहे गांव जाके समझाएंगे। यहाँ के समझाओ किसान यहाँ सड़कों पे बैठा है, उसी को इसने यहाँ अगर उग्रवादी बता रहे हैं, उसी को ये खालिस्तानी बता रहे हैं। जो हल चलाता है उसने कभी बंदूक उठा के देखी नहीं। हमको बंदूक की जरूरत नहीं, हम हल चलाते हैं, हल से अन्न पैदा करते हैं। और उसी वही हमारा जो कर्म धर्म जो है, हम उसको बढ़ाए रखना चाहते हैं। ये उनको हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो ना काले कानून अच्छे हैं। एक वो बोलते हैं कि हमें जो धीरे धीरे पता लगा था शुरू में MSP से, उसके बाद धीरे धीरे पता लगा इसमें 20-25 खामियां निकल गई। तो अगर बोलते हैं ना नाव में एक छेद हो जाता है तो वो डूब जाती है, इसमें 20-25 खामी है। तो ये तो कानून तो वैसे ही गलत है भाई साहब, कानून तो गलत है। और अब तो बच्चे को ये पता लग गया है कि ये कानून कितने गलत है। आप गलत की बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि किसान इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी तो नहीं, आय अच्छा ये भी चली जाएगी जब जमीन ही चली जाएगी। वो कहते हैं ना, एक पोल्ट्री फार्म देख लो आप, पोल्ट्री फार्म में जिस तरह से कंपनी वो देती है, पोल्ट्री फार्म में सारे अपना दवाई बीज सब कंपनी देगी। और लेकिन जब बच्चा या अंडे जब मार्केट में जाए उसके बाद 1-2% के हिसाब से मुर्गी फार्म वाले को मिलता है। वही असर किसानों को होने वाला है। ये जमीन हमें अपनी जमीन पे परसेंटेज के उसके हिसाब से, इन्होंने बोला था स्वामीनाथन रिपोर्ट देंगे, शुरू में बोला था, वो मोदीनाथन आ गई। आप कह रहे हैं आपकी जमीन चली जाएगी और मोदी जी कहते हैं क्या जब आप दूध देते हैं तो क्या आपके मवेशियों को ले जाता है कोई? वो कैसे ले जाएंगे जब मवेशी हमारे हैं? अब जमीन हमारी है, ये भी आप ही की है ना। मोदी जी भी यही समझाना चाह रहे हैं। नहीं समझाना चाह रहे भाई साहब, बिल्कुल सरासर झूठ है। कुछ ऐसा नहीं है। ये तो अंबानी अडानी के लिए जो धीरे धीरे वो कहते हैं ना, शुरू में हम आपको जो कोई कंपनी बोलती है कि हम आपको 10,000 रुपये दो, हम 20,000 देंगे, जैसे फिल्मों में देखा होगा। और कहते हैं 20 ले लो, 40 ले लो। तो जब करके जब हम अपने रिश्तेदारों के पैसे उनके बहकावे में आके इकट्ठे करके दे दिए तो कंपनी भाग जाती है। इसी तरह से बिल्कुल वही एजेंडा अपना रहे हैं। बिल्कुल ये गुलाम बनाने की कोशिश है। और अंग्रेजों से भी ज़्यादा गुलाम, जिंदा लाश की तरह बोलते हैं ना, वो जिंदा लाश बना के छोड़ देंगे। ये भूखमरी सब, मतलब आज भी देख रहे हो आप, अर्थव्यवस्था की घट गई। और जो कहे करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो बेटियां भी सड़कों पर हैं। 80-80 साल की माताएं बुजुर्ग वो भी सड़कों पर है। और बेटी पढ़ाने की बात कह रहे थे, 10 महीने से स्कूल बंद है। उन बच्चियों की आत्मा से पूछ के देखो, हमारे चल बच्चे हैं वो इधर उधर घूम भी आते हैं, चाचे ताए के घर चले गए। वो छोटी बच्चियां अपने घरों में कैद होकर रह रही है। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की सच्चाई है इनकी? ये तो बताओ। ये बोलते थे कि बेटी नहीं बचाओगे तो घरवाली कहाँ से लाओगे, अगर खेती नहीं बचाओगे तो अन्न कहाँ से खाओगे। जब खेती नहीं बचेगी तो इस बात का मैं जवाब मानता हूँ। और जो ये कहते हैं ना कि हम ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, ये हमने मांगे नहीं थे, जो जबरदस्ती थोपे गए हैं। किसान जब हल चलाता है वो झुकता है, जिस टाइम दूध निकालता है जब भी झुकता है। अगर हम झुकना जानते हैं तो झुकाना भी जानते हैं। और आपने देखा होगा आंदोलन बिल्कुल। आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगामी रणनीति कोई, मैं पंडित जी तो है नहीं, देखो भाई साहब, वो तो हमारे जो नेताजी जो फैसला लेंगे वही हमें मंजूर है, उनके ऊपर चलो। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।